Good morning, everyone, and welcome to the class. We are doing contemporary South Asia, and under this chapter, we are doing Sri Lanka, the internal politics of Sri Lanka. As we have discussed in the previous class, that in Sri Lanka there was ethnic conflict between the Tamilians and the Sinhalas. And in this ethnic conflict, what we find that the majority was of those people who spoke Sinhala language and who originally belonged to Sri Lanka. And this majority group was given priority by the government in all the for the admission in the educational institute for the purpose of recruitment to the jobs and promotion. In all these things we see that that the Sinhala language was given primacy over any other language, and uh, this led to the establishment of majoritarianism in Sri Lanka, जहाँ पर majority is given priority. And this policy of the government was responsible for starting of the civil war in Sri Lanka. The Tamilians, Sri Lankan Tamilians, they started to believe that this country, the country Sri Lanka, does not belong to them, and they started to demand a separate country, an independent country for them. The northeastern part of Sri Lanka, which was there where was the Tamilian population was concentrated, that portion was demanded as an independent country by the Tamilians. And in this process, militant organization also comes into existence, that is Liberation Tigers of Tamil Eelam. And there was war-like situation between LTTE on the one hand and the Sri Lankan government on the other hand. And it used to be a full-fledged war, because Sri Lankan government used air force, even मतलब एयर फोर्स तक यूज़ किया जाता था इनके अगेंस्ट, LTTE के अगेंस्ट. तो दैट वाज द इम्पॉर्टेंट थिंग अबाउट दिस, कि इतना इस लेवल का सिविल वॉर वहाँ चल रहा था. तो इन सब में इंडिया जो था वो इन्वॉल्व हो गया. पहले तो इनडायरेक्टली इन्वॉल्व था, because there was pressure from Indian Tamils who were living in India, that the government of India must do something for the Tamilians in Sri Lanka, because they originally belong to India only, है ना. So there was pressure on the central government to protect the interest of the Sri Lankan Tamilians. And in this we have seen that in 1987 one accord was signed between the Sri Lankan government and the Indian government. And according to this accord, what happened, Indian government sent troops to Sri Lanka in order to stabilize the relationship between the Sri Lankan government and the LTTE, because जो LTTE जो कि तमिल्स को रिप्रेजेंट कर रहा था, और दूसरी तरफ श्रीलंकन गवर्नमेंट, इनके बीच में सिविल वॉर चल रहा था. तो जब इंडिया इसमें इन्वॉल्व होता है, श्रीलंकन गवर्नमेंट के साथ इंडियन गवर्नमेंट की बातचीत होती है, नेगोशिएशंस होते हैं, तो अल्टीमेटली 1987 में एक अकॉर्ड पर साइन होता है, और उसके अकॉर्डिंगली इंडिया की जो ट्रूप्स थी वो श्रीलंका जाती है, ताकि वहाँ पर पीस इस्टेब्लिश की जा सके. श्रीलंकन गवर्नमेंट और LTTE के बीच जो कुछ भी वॉर चल रहा था उसको रोका जा सके, स्टेबलाइज किया जा सके, पीस वहाँ पर लाई जा सके. ठीक है, इस पर्पज से इंडियन जो थी आर्मी वो जाती है, जिसको हम लोग कहते हैं IPKF, इंडियन पीस कीपिंग फोर्स. IPKF
दिस इंडियन पीस कीपिंग फोर्स जो था वो श्रीलंका पहुंचता है। बट यहाँ पर बड़ी ही कॉन्ट्राडिक्टरी सिचुएशन हो जाती है। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन। इंडियन गवर्नमेंट वॉज इन फेवर ऑफ तमिल्स, है ना। इंडियन गवर्नमेंट involved in talks with the Sri Lankan government so that the interest of the Sri Lankan Tamils can be protected, and for that purpose only Indian government got involved in the Sri Lankan whatever was happening in Sri Lanka. उसमें इंडिया के इन्वॉल्व होने के पीछे पर्पस क्या था? व्हाट वाज द पर्पस बिहाइंड द इन्वॉल्वमेंट ऑफ इंडिया in the matter of Sri Lanka? The purpose was to protect the interest of the Tamils who are living in Sri Lanka, and to protect the interest of the Sri Lankan Tamils. And according to the Accord of 1987, this IPKF, Indian Peacekeeping Force, was sent to Sri Lanka. And what happened that this IPKF was fighting with the army of the Sri Lankan government against the LTT. So this IPKF was fighting with Sri Lankan army against LTTE. तो ये मतलब जिसको कहा जाएगा कि इतना बड़ा ये कॉन्ट्राडिक्टरी सिचुएशन हो गया इंडिया के लिए कि एक तरफ you are there to protect, you got involved yourself only to protect the interest of the Sri Lankan Tamils, but you are sending the troop to fight against the LTT. The LTT, which was the organization of Tamils, which was to promote the interest of the Tamils. So instead of promoting the interest of the Tamils, you are crushing the LTT with the Sri Lankan government. तो ये बहुत ही कॉन्ट्राडिक्टरी सिचुएशन हो गया जिसका इम्पैक्ट इंडिया पे भी पड़ता है। और एक तो ये हो गया कि कॉन्ट्राडिक्टरी सिचुएशन में इंडिया आ गया। दूसरी चीज़ जो है इसमें ये हुई कि एक्चुअली श्रीलंकन गवर्नमेंट also disliked the presence of foreigners troops in their country, on their land, in their territory. Troops of some foreign country is present. That was not acceptable to the Sri Lankan government. किसी भी गवर्नमेंट को ये अकॉर्ड तो साइन कर लिया गवर्नमेंट ने कि IPKF आएगी यहाँ पे, लेकिन जब वो वहाँ पे पहुँचती है तो श्रीलंकन गवर्नमेंट को भी ये अच्छा नहीं लगता है कि वो क्यों, मतलब हमारी कंट्री में वो क्यों आ गए। They were not ready to accept this IPKF. तो दोनों तरफ से ये गए। LTTE के साथ भी नहीं हो पाए क्योंकि LTTE के तो अगेंस्ट आप लड़ रहे हो, जबकि आपसे ये जो एक एक्सपेक्टेशन था, जो प्रेशर था इंडिया में जो तमिल्स का गवर्नमेंट पे, वो ये प्रेशर था कि आप तमिल्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करिए, बट हो गया उल्टा काम। और दूसरी तरफ जो श्रीलंकन गवर्नमेंट थी वो भी इंडिया को नहीं पसंद कर रही थी, इंडियन ट्रूप्स का वहाँ पे होना है, IPKF का वहाँ पे होना, उसको इंडियन श्रीलंकन गवर्नमेंट भी नहीं पसंद कर रही थी। तो इन सब का कॉन्सिक्वेंस क्या होता है कि जो हमारी IPKF थी वो वापस आ जाती है 1989 में। IPKF वापस आ जाती है जिस पर्पस से IPKF गई थी कि पीस इस्टेब्लिश कर दिया जाएगा, दोनों के बीच का LTTE और श्रीलंकन गवर्नमेंट के बीच के रिलेशन को स्टेबलाइज कर दिया जाएगा। वो अपने पर्पस में सक्सेसफुल हुए बिना ही वापस आ जाती है क्योंकि सिचुएशन काफ़ी ख़राब हो जाते हैं। श्रीलंकन गवर्नमेंट तक इंडियन ट्रूप्स को नहीं पसंद कर रही थी, उसको अपने इंटरनल अफेयर्स में इंटरफेरेंस उसको लग रहा था। तो इस तरह से इंडिया का ये इन्वॉल्वमेंट होता है जो कि एक अनसक्सेसफुल इन्वॉल्वमेंट हम जिसको कहेंगे। नाउ नेक्स्ट वी सी कि ये जो कंडीशन थी वो पूरे के पूरे
अगर हम देखें तो पूरे 80 का जो दशक था उसमें 90 के पूरे डिकेड में, यहाँ की 2000 में भी ये सारे प्रॉब्लम्स जो थे, मतलब एलटीटीई और श्रीलंकन गवर्नमेंट के बीच का जो सिविल वॉर था वो चलता रहा, जिसमें बहुत सारी मतलब प्रॉब्लम्स आ रही थी, लोगों की जाने जा रही हैं, इतने सारे अनरेस्ट है पूरी की पूरी कंट्री में। तो ये सिचुएशन बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी श्रीलंका के लिए। और उस समय कुछ ऐसे कंट्रीज थे जैसे कि जिनको हम स्कैंडिनेवियन कंट्रीज कहते हैं, लाइक नॉर्वे, आइसलैंड, इन्होंने पीस इस्टेब्लिश करने की कोशिश की। ठीक है, तो ये जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं उनके एफर्ट से पीस जो है वो फिर से मतलब नेगोशिएशन की तरफ बढ़ते हैं एलटीटी और श्रीलंकन गवर्नमेंट। और लेकिन बहुत सक्सेस नहीं मिल पाता है, बातचीत होती है, टॉक्स होते हैं, बट द टॉक्स वर नॉट सो सक्सेसफुल। अल्टीमेटली जाकर के 2009 में एलटीटीई जो है वो पूरी तरह से उसको क्रश कर देती है। श्रीलंकन गवर्नमेंट, जो एलटीटीई का हेड था प्रभाकरन, उसको पकड़ के उसको मार दिया जाता है, क्योंकि उनके ही ग्रुप के जो लोग थे, जो प्रभाकरन का काफ़ी खास था, उसने ही गवर्नमेंट को उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे दी, जिसकी वजह से प्रभाकरन पकड़ा गया। और सबसे बड़ी बात ये थी कि अगर लास्ट में हम देखें 2000 के डिकेड में देखें, शुरू में तो एलटीटी की बहुत पॉपुलैरिटी थी अमंग द तमिल्स, श्रीलंकन तमिल्स बहुत ज़्यादा पॉपुलर थे। एलटीटी के जो टाइगर्स थे, लिबरेशन टाइगर्स, दे वर वेरी मच पॉपुलर, और तमिल्स का सपोर्ट भी था। लेकिन धीरे धीरे ये जो एलटीटी थी वो उनका जो सपोर्ट बेस था वो तमिल्स में भी कम होता गया, क्योंकि काफ़ी फोर्सफुली वो रिक्रूटमेंट करना, है ना, और गवर्नमेंट के अगेंस्ट लड़ाई करना, वो एक तरह का मिलिटेंट ग्रुप में पूरी तरह से चेंज हो चुका था, जिसको कि इवन तमिल्स, श्रीलंकन तमिल्स वर नॉट सपोर्टिंग, बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर पा रहे थे, जो सिचुएशन हो गया था उसमें लास्ट में। और इसी में प्रभाकरन का पकड़ा जाना, और अल्टीमेटली 2009 में हम देखेंगे कि एलटीटी जो है उसको पूरी तरह से क्रश कर देती है श्रीलंकन गवर्नमेंट। और इसके बाद से अगर हम आज 12 ईयर पास हो चुके हैं, श्रीलंका में पीस है, अभी वहाँ पे किसी भी तरह का वायलेंस या सिविल वॉर या उस तरह की कोई भी कंडीशन वहाँ पर नहीं है। और जैसा कि हम देख चुके हैं कि डेमोक्रेसी वहाँ सक्सेसफुली चलती रही है, डेमोक्रेसी में कभी भी कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं आया। Not only this, Sri Lanka has also registered a very good economic growth. इकोनॉमिक ग्रोथ अगर देखें, इकोनॉमिक डेवलपमेंट देखें तो वो बहुत ही अच्छा हुआ है। नॉट ओनली इकोनॉमिक डेवलपमेंट बट in respect of human development also, Sri Lanka has achieved a lot, as we have seen in Human Development Index of 2018. Sri Lanka stood at 76th position. This is really very remarkable achievement of Sri Lanka. And if we see the condition of health and education, everything is in a very good condition, and that is the reason that it is standing at 76th rank, है ना। So these are the achievements. Other than this, we also see that Sri Lanka is the first country in South Asia who liberalized its economy. लिबरलाइज्ड का मतलब क्या हुआ, जैसे हमने देखा ना कि जो 91 में यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन होता है, उसके बाद क्या होता है, शॉक थेरेपी होता है। जो भी यूएसएसआर के रिपब्लिक्स थे जो कि अब इंडिपेंडेंट हो जाते हैं आफ्टर 1991, वहाँ पे शॉक थेरेपी होता है। और शॉक थेरेपी में क्या होता है, जो सोशलिस्ट इकोनॉमी थी उसको कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में चेंज किया जाता है। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का मतलब वही हुआ लिबरलाइज होना। लिबरलाइज का मतलब कि जो रिस्ट्रिक्शंस होते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ पर, दोज रिस्ट्रिक्शंस वर रिमूव्ड, है ना। व्हेन restrictions on economic activities is removed, this is called liberalization. You will know
मोर अबाउट इट इन द चैप्टर ग्लोबलाइजेशन, जो कि लास्ट चैप्टर है इस बुक का, फर्स्ट बुक का लास्ट चैप्टर ग्लोबलाइजेशन, जिसमें आप उसके बारे में काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे। अभी इतना जो हमने पढ़ा है उसके बेसिस पे ही बस इतना समझना है कि लिबरलाइजेशन का मतलब ये होता है कि इकोनॉमी को पूरी तरह से ओपन कर देना, जो भी ऑब्स्ट्रक्शंस हैं इकोनॉमी पे उसको ख़त्म कर देना, जैसे कि लाइसेंस का जो सिस्टम होता है, परमिट का सिस्टम होता है, उन सबको ख़त्म कर देना। किसी को भी कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए लाइसेंस की ज़रूरत, मतलब कुछ बहुत चुनिंदा चीज़ें हैं, सेलेक्टेड एक्टिविटीज़ है जिसके लिए आपको लाइसेंस लेना है, अदर देन दैट लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है। बाहर से जो ट्रेडिंग हो रही है वो बिल्कुल ही ऑब्स्ट्रक्शन फ्री है। तो दिस इज़ लिबरलाइजेशन। तो ये श्रीलंका पहली कंट्री थी साउथ एशिया में जिसने कि अपने इकोनॉमी को ओपन किया, ठीक है। और इतना ही नहीं, अगर हम पॉपुलेशन कंट्रोल, जैसे साउथ एशिया जो है इसमें पॉपुलेशन की भी बहुत प्रॉब्लम है हमारी, जैसे इंडिया सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन है इंडिया का पूरी वर्ल्ड में। तो अगर साउथ एशिया को हम देखें तो इसमें श्रीलंका एक ऐसी कंट्री है जिसने कि अपनी पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट को भी बहुत सक्सेसफुली कंट्रोल किया है ना। तो ये डेवलपिंग कंट्रीज़ में श्रीलंका उन कुछ एक कंट्रीज़ में एक उसका नाम लिया जाता है जिसने कि पॉपुलेशन के ग्रोथ रेट को कंट्रोल कर लिया है, ठीक है। तो ये चीज़ें जो हैं वो हम श्रीलंका के पॉजिटिव पॉइंट्स में हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर हम जीडीपी देखें तो जीडीपी भी यहाँ की बहुत अच्छी है, और जब जीडीपी को हम पॉपुलेशन से डिवाइड कर देते हैं तो हमें क्या मिलता है, पर कैपिटा इनकम। तो पर कैपिटा इनकम भी जो है वो यहाँ पर हायर में जा रहा है, जो कि इसके बहुत ही अच्छे इकोनॉमिक ग्रोथ को इंडिकेट करता है ना। तो इस तरह से इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स हुए, एथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स हुए सिन्हलाज और तमिल्स के बीच में, सिविल वॉर हुआ, बहुत सारे वायलेंस हुए, कई सारी चीज़ें गलत हुई श्रीलंका के अंदर। लेकिन फिर भी अगर हम देखें तो श्रीलंका में इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट पे कंट्रोल, देन लिबरलाइजेशन का इकोनॉमी का करना, ये सब में श्रीलंका ने बहुत ही रिमार्केबल अचीवमेंट को इसने ऑब्टेन किया। एंड डेमोक्रेसी भी यहाँ स्टेबल रही। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि यहाँ पर मिलिट्री रूल आ गया या फिर किसी भी तरह से डेमोक्रेसी को बिल्कुल ही क्रश कर दिया गया। ऐसा 1948 से लेकर के अभी तक की हिस्ट्री में श्रीलंका में ऐसा नहीं हुआ है। तो श्रीलंका एंड इंडिया आर द ओनली कंट्री इन साउथ एशिया जहाँ पर कि कंटिन्यूसली डेमोक्रेसी जो है वो इस्टेब्लिश रही है, कभी भी इसमें इंटरप्शन नहीं आया है। सो दिस इज ऑल अबाउट श्रीलंका। हमने श्रीलंका को कंप्लीट कर लिया, ठीक है। अब जो नेक्स्ट कंट्री है, कंट्रीज हमने कर लिया, अब हम देखेंगे कि साउथ एशिया के जो डिफरेंट कंट्रीज हैं उनके बीच में कैसा रिलेशन है, व्हाट काइंड ऑफ रिलेशनशिप इज एक्सिस्टिंग बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज ऑफ साउथ एशिया। और अगर साउथ एशिया में हम देखें तो सबसे जो प्रोमिनेंट कंट्री है साउथ एशिया में, सबसे बड़ी कंट्री है एरिया वाइज, पॉपुलेशन वाइज, इकोनॉमिक स्ट्रेंथ के हिसाब से, तो ये इंडिया है। इसलिए यहाँ पर हम क्या देखेंगे कि साउथ एशिया में जो भी कॉन्फ्लिक्ट है बिटवीन द कंट्रीज उसमें इंडिया जरूर इन्वॉल्व है, बिकॉज ऑफ इट्स साइज, बिकॉज ऑफ इट्स पॉपुलेशन, because of its economic power, because of its central location। अगर हम सेंट्रल एशिया साउथ एशिया में इंडिया को देखें तो इंडिया का जो लोकेशन है वो एकदम सेंटर में है। तो साइज भी बड़ी है, पॉपुलेशन बड़ा है, इकोनॉमिक कंडीशन इस तरह की, इकोनॉमिक सुपर पावर तो नहीं कहेंगे हम, बट इकोनॉमिकली हम बहुत कुछ अचीव कर रहे हैं। तो इन सब रीज़न से जिस भी किसी कंट्री के साथ हम देखेंगे तो उसमें इंडिया जरूर इन्वॉल्व होगा। और अगर इन सब में साउथ एशिया के जो डिफरेंट कंट्रीज़ के बीच के रिलेशन में अगर सबसे ज़्यादा जो कंट्रोवर्शियल रिलेशन है वो इंडिया और पाकिस्तान का ही रिलेशन है। तो सबसे पहले हम लोग इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट्स पर ही फोकस करेंगे, ओके।
सो अगर हम इंडिया और पाकिस्तान के कॉन्फ्लिक्ट को देखें तो ये जो स्टार्टिंग होती है वो इन कंट्रीज़ के इंडिपेंडेंस के साथ ही ये कहानी स्टार्ट हो जाती है। जो कॉन्फ्लिक्टिंग रिलेशनशिप है इंडिया और पाकिस्तान के बीच का, 1947 15 अगस्त इंडिया को आज़ादी मिली और साथ ही साथ डिवीज़न भी हुआ, जैसे कि हम लोग जानते हैं। वी आर नोइंग ऑल दीज थिंग्स, है ना। तो ये जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच के डिवीज़न का जो वो था प्लान था, दैट वाज माउंटबेटन प्लान उसको कहा जाता है, जो 3 जून को पब्लिश किया गया था। और उसी में ये तय हुआ था कि इंडिया को इंडिपेंडेंस मिलेगी लेकिन इंडिया का डिवीज़न भी हो जाएगा। और ये जो डिवीज़न हुआ था वो रिलीजन के बेसिस पे हुआ था। 2 नेशन थ्योरी जो कि मुस्लिम लीग की तरफ से दी गई थी कि इंडिया में एक नहीं बल्कि 2 रिलीजन के लोग रहते हैं और इसलिए इंडिया एक नेशन नहीं बल्कि इंडिया में 2 नेशन होनी चाहिए। इंडिया मतलब पूरी की पूरी इंडिया एक नेशन नहीं हो सकती, बिकॉज यहाँ पर 2 डिफरेंट रिलीजन को मानने वाले लोग रहते हैं, इसलिए 2 नेशन होना चाहिए दोनों रिलीजन के बेसिस पर। यही डिमांड थी मुस्लिम लीग की और इसी के हिसाब से चीज़ें होती गई। ऐसे कुछ डेवलपमेंट्स हुए 1940s में, जिस तरह से दंगे हुए और जिस तरह से मुस्लिम लीग का जो डिमांड था कि वो माइनॉरिटी में होते हुए भी मुस्लिम्स के लिए ये चाहती थी कि उनका रिप्रेजेंटेशन इस तरह से किया जाए कि उनको बराबरी का हक मिले, तो दैट वाज नॉट एक्सेप्टेड बाय कांग्रेस। और ये यही रीज़न बना कि पार्टीशन को एक्सेप्ट किया। हालांकि महात्मा गांधी लास्ट तक इसके लिए तैयार नहीं थे, लेकिन जो सिचुएशन जिस तरह से बनती गई उसमें पार्टीशन को एक्सेप्ट करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। तो इंडिया की आज़ादी के साथ साथ इंडिया का डिवीज़न होता है, पार्टीशन होता है। और ये पार्टीशन जो, इसके बारे में आप लोग डिटेल में पढ़ेंगे जब सेकंड बुक पढ़ेंगे, जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें पार्टीशन पर एक अच्छा खासा आपका पूरा सेक्शन है। तो जो ये पार्टीशन था वो टोटली अनप्लान्ड था, जिसके लिए किसी भी तरह की गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी प्लानिंग नहीं की गई थी। लोगों को बिल्कुल अनप्लान्ड वे में उन्हें डिस्प्लेस होना था। जो 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 हिंदूज पाकिस्तान में रह रहे थे उनको पाकिस्तान से इंडिया आना, जो इंडिया में मुस्लिम रह रहे वो यहाँ से पाकिस्तान जा रहे हैं। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट हुआ, इसी के साथ बहुत सारे राइट्स हुए, दंगे हुए, ये सब कुछ मतलब यू मस्ट बी नोइंग। इसमें कोई ऐसी चीज़ें, इसके बारे में आपने क्लास 8 में भी पढ़ा था। ये चीज़ें हम सब इसको जानते हैं और इसके बारे में बहुत सारी डिटेल में आपको पढ़ना है सेकंड बुक में, फर्स्ट चैप्टर में। अभी यहाँ पर जो हमारा मेन फोकस है वो है कि कॉन्फ्लिक्ट जिस तरह से इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ, उस दौरान जो कुछ भी वायलेंस हुआ, किलिंग्स हुई, राइट्स हुए, उसका यही कंसिक्वेंस था कि इन दोनों कंट्रीज़ के बीच का रिलेशन कभी भी अच्छा नहीं हो पाएगा। क्योंकि जब बर्थ के समय ही इतना सब कुछ हो रहा है तो ऑब्वियसली वो चीज़ें जो है वो इतनी जल्दी हील होने वाली नहीं थी। तो ये इस बात का अंदेशा था कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच का रिलेशन काफ़ी परेशानियों वाला होगा। लेकिन इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण, जिसको हम कहेंगे जो सबसे इम्पॉर्टेंट रोल जिस चीज़ ने प्ले किया है इंडिया और पाकिस्तान के बीच के रिलेशन में, वो है कश्मीर। कश्मीर एक ऐसा मुद्दा है जो कि मुद्दा ही बन के रह चुका है आज के समय में। कश्मीर इट्स एन इशू। कश्मीर के लोग हमारे मतलब वी डोंट, ये 2 देशों के बीच की लड़ाई में एक इतना खूबसूरत जो जगह है, वो एक जिसको जन्नत कहा जाता था, आज वो जो उसकी कंडीशन हो चुकी है वो हम सब जानते हैं। तो आखिर इसमें कश्मीर जो है यही सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न है इंडिया और पाकिस्तान के बीच के कॉन्फ्लिक्ट का। और इसको भी आपको सेकेंड बुक में इसके बारे में भी पढ़ना है कि जो कश्मीर था वो आपका किस में आता है, प्रिंसली स्टेट्स में आते हैं। प्रिंसली स्टेट का क्या मतलब हुआ? प्रिंसली स्टेट का मतलब ये होता है कि 1857 का रिवोल्ट, यू मस्ट रिमेंबर द रिवोल्ट ऑफ 1857, है ना। 1857 के रिवोल्ट के बाद क्या हुआ कि
बहुत सारे चेंजेस लाए। ब्रिटिश पार्लियामेंट की तरफ से एक एक्ट पास किया गया 1858 का, और इस एक्ट में ये हुआ कि जो इंडिया अभी तक जो इंडिया ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल में था, अब इंडिया का जो रूल था वो ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से निकल करके डायरेक्ट ब्रिटिश जो मोनार्क थे उनके हाथ में चला गया। ठीक है, और इसी के साथ जो यहाँ पर हमारे लिए जो रेलिवेंट चीज़ समझने के लिए है, उसमें यही सबसे इम्पॉर्टेंट है कि ये कहा गया उस एक्ट में, एक्ट ऑफ 1958, कि अब आगे किसी भी तरह का एनेक्सेशन नहीं करेगी ब्रिटिश गवर्नमेंट। इंडियन टेरिटरी को एनेक्स करने का जो काम किया जा रहा था, उस एनेक्सेशन को वहीं पर रोक दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, जो एनेक्सेशन को रोका गया, तो जिन एरियाज को, जिन टेरिटरीज को 1857 तक कंपनी ने एनेक्स कर लिया था, वो कहलाए ब्रिटिश प्रोविंसेस। दिस इंफॉर्मेशन इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट, इसको आपको इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि ये फिर से जब सेकेंड बुक पढ़ाएंगे तो फिर से उसमें ये चीज़ें आएंगी। ये एकदम क्लियर होना चाहिए, इट शुड बी कम्प्लीटली क्लियर इन योर माइंड कि हम प्रिंसली स्टेट किसको कह रहे हैं, हम ब्रिटिश इंडिया किसको कह रहे हैं। ठीक है, तो ब्रिटिश इंडिया जो है वो, ब्रिटिश इंडिया वो पार्ट है जिसको कि 1857 तक ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने टेरिटरी में, जिसको वो मिला चुका था। इंडिया का वो पार्ट जिसको कि ईस्ट इंडिया कंपनी 1857 तक अपने में मिला चुकी थी, एनेक्स कर चुकी थी। और जिस पार्ट को एनेक्स नहीं किया गया था 1857 तक, उसके बारे में ये कहा गया 1858 के एक्ट में कि अब आगे एनेक्सेशन नहीं होगा। और जिनका एनेक्सेशन नहीं हुआ वो क्या कह रहे हैं, प्रिंसली स्टेट्स। ठीक है, क्योंकि क्यों ये एनेक्सेशन को रोका गया, अगर ये समझेंगे चीज़ों को, जितना ज़्यादा समझेंगे उतना आपको पढ़ने में इंटरेस्ट आएगा और उतनी चीज़ें रिटेन रहेंगी, दिमाग में रहेंगी, नहीं तो निकल जाती हैं सब दिमाग से, है ना। तो इसलिए जितना ज़्यादा अपने माइंड को आप ब्रॉड करिएगा वो आपके लिए उतना अच्छा होगा। अंडरस्टैंडिंग लेवल जितना बढ़ाएंगे, जितनी चीज़ें समझेंगे, जानेंगे, दैट विल बी वेरी मच बेनिफिशियल फॉर यू, है ना। तो यहाँ पर ये समझना है कि आखिर क्यों ये 1958 के एक्ट में ये कहा गया कि अब कोई एनेक्सेशन नहीं होगा। जितने पोर्शन को ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने आप में मिला चुके हैं ईस्ट इंडिया कंपनी, बस अब उसके आगे वाला पोर्शन छोड़ दिया जाएगा, उस पर कोई भी उसको अपने में मिलाने का काम नहीं होगा, एनेक्सेशन नहीं होगा। क्यों ये कहा गया, इसलिए कहा गया क्योंकि 1857 का जो रिवोल्ट हुआ था, उसके पीछे जो मेन रीज़न था वो एनेक्सेशन ही था। इतने सारे जो इंडिया के जो राजा का जो वो था, टेरिटरी था, उसको ब्रिटिश कंपनी जो थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, वो एनेक्स की जा रही थी। और इस कारण राजा में तो डिससेटिस्फैक्शन आ ही रहा था। जो उनकी प्रजा थी, जो सब्जेक्ट थे, दे वर ऑल्सो हाईली डिससेटिस्फाइड बाय द डिसरिस्पेक्ट, जो डिसरिस्पेक्ट किया जा रहा था उनके राजा का, उसके कारण उनके अंदर बहुत ज़्यादा असंतोष था, डिससेटिस्फैक्शन था, जिसमें कि हम लोग देखेंगे अवध का एनेक्सेशन जो था वो सबसे ज़्यादा डिससेटिस्फाइंग था लोगों के लिए। झांसी, इस तरह के जो जिस बेसिस पे तरह तरह के गलत तरीके से इंडियन टेरिटरीज को जिस तरह से एनेक्स किया जा रहा था, वो इंडियन जो पीपल थे उनके डिससेटिस्फैक्शन का रीज़न बना। और इसी डिससेटिस्फैक्शन के कारण 1857 का रिवोल्ट हुआ। और ये रिवोल्ट इतना स्ट्रॉन्ग रिवोल्ट था कि ब्रिटिश जो थे ये इस रिवोल्ट से बिल्कुल घबरा गए, और उन्हें यही लगा कि अगर ऐसा रिवोल्ट फिर से हुआ तो शायद वो यहाँ पर अपने रूल को प्रोलॉन्ग नहीं कर पाएंगे। और इसलिए ब्रिटिश पार्लियामेंट के हाथ में, ब्रिटिश मोनार्क के हाथ में यहाँ का रूल चला गया। जो अभी तक ईस्ट इंडिया कंपनी रूल कर रही थी 1857 तक, वो अब चला जाता है मोनार्क के हाथ में। ठीक है, और इसी वजह से हम देखते हैं
कि एनेक्सेशन को भी रोक दिया गया कि जहाँ तक आपने अपने अपने कब्जे में ले लिया है बस अब वहीं पर आप रुक जाइए, अब उससे आगे किसी भी टेरिटरी को आपको एनेक्स नहीं करना है। तो जिन टेरिटरीज को एनेक्स नहीं कर पाए थे वो 1857 तक वो प्रिंसली स्टेट कहलाए। जब प्रिंसली स्टेट मतलब वहाँ पे कोई ना कोई राजा रूल कर रहा है, राजा है, चाहे उसको नवाब कहिए चाहे निज़ाम कहिए, जो भी नाम से जाना जाए, वो राजा है जिसका कि वहाँ पे रूल है। ऐसे बहुत सारे छोटे 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 प्रिंसली स्टेट्स थे। अगर देखा जाए तो आज़ादी के पहले ऐसे 565 प्रिंसली स्टेट्स इंडिया में थे, ठीक है। और ऐसा ही एक प्रिंसली स्टेट कौन सा था? कश्मीर। कश्मीर वॉज ऑल्सो अ प्रिंसली स्टेट ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। और जब जो हमारा ये आया ना कि इंडिया का इंडिपेंडेंस एक्ट, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947, उसमें ये कहा गया कि एक तो ये हो गया कि इंडिया और पाकिस्तान बन गए, दो कंट्री बनेंगी, और ब्रिटिश इंडिया जो थी उसका पार्टीशन होगा, है ना। जो ब्रिटिश इंडिया थी दैट विल बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, इंडिया एंड पाकिस्तान, ठीक है। ब्रिटिश इंडिया विल बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। और जो देसी रियासतें थी, जो प्रिंसली स्टेट्स थे, उनको ये आज़ादी दे दी गई कि आप अपनी मर्जी से चाहे तो पाकिस्तान को ज्वाइन करें, चाहे तो इंडिया को ज्वाइन करें, या फिर आप आज़ाद रहें। तो ये जो प्रोविज़न था ना कि आपकी मर्जी है, आप इंडिया को ज्वाइन करें या पाकिस्तान को, या आज़ाद है, इसके कारण ही सारी प्रॉब्लम्स आई। और कश्मीर का जो देसी रियासत जो कश्मीर थी वहाँ भी इसी कारण मर्जर में ही प्रॉब्लम आई, जिसके कारण ये मुद्दा आज तक नहीं सुलझ सका है। तो इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ओके, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे।